Good morning, dear students. As you all know, we have been discussing chapter 2 of 12th history, kings, farmers and towns, early economy. So far, what we have been discussing the chapter is the sources by which we can recreate this particular period of 600 BC to 600 CE. The sources could be divided in literary sources and textual and archaeological sources. Then we have seen topics like the 16 Mahajanpad, Magad as the prominent Mahajanpad among the 16, and the rise of the Mauryan Empire. So far we have discussed all these topics. Today we will start from the topic a changing countryside. What is the topic today we will going to take is a changing countryside. So let's start. The first point which we will be going to discuss is this source. We will going to discuss the source because as you know, according to the new assessment policy, there will be some questions could be arise from the source based question. So these sources are very much important, and this is at most important because in last year the sample paper of CBSE has to put up this question as a sample paper. So let's start. The Sudarshan Lake in Gujarat. What is this source is about? It is about a reservoir, an artificial reservoir named Sudarshan Lake, which is situated in Gujarat. So let's start. The Sudarshan Lake was an artificial reservoir. We know about it from a rock inscription in Sanskrit composed to record the achievement of the Shak ruler Uddam. सुदर्शन जो है एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है, आर्टिफिशियल लैक है. हाउ डू वी नो अबाउट इट? वी नो अबाउट इट फ्रॉम अ रॉक इंस्क्रिप्शन. एक रॉक इंस्क्रिप्शन जो है जिससे हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है, विच इज रिटन इन संस्कृत. कंपोज किस लिए लिखी हुई है? कंपोज फॉर अचीवमेंट ऑफ शक रूलर रुद्रदमन. जो शक रूलर है रुद्रदमन, उसके अचीवमेंट्स को कंपोज करने के लिए एक रॉक इंस्क्रिप्शन लिखा गया. उस रॉक इंस्क्रिप्शन से हमारे को जो सुदर्शन लैक है उसके बारे में मालूम पड़ता है. The inscription mentions that the lake with embankment and water channels was ruled by a local governor during the rule of the Maurya. देखिए इंस्क्रिप्शन क्या है, उसमें क्या मेंशन है? उसमें मेंशन है कि ये जो लैक है और इसके किनारे, इसके जो वाटर चैनल्स है, कैनाल से, ये सारे किसी द्वारा बनाए गए लोकल गवर्नर के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य. जो मौर्य है उनके पीरियड के अंदर. However, a terrible storm blocked the embankment and water gush out of the lake. लेकिन किसी कारण से जो किनारे में डूब जाते हैं, पानी जो है वो बह के चला जाता है. रुद्रदमन who was then ruling in the area claimed to have got the lake repaired using his own resources without imposing any tax on his subject. रुद्रदमन ने ये लिखा हुआ है कि जो है किसी कारण से बर्बाद किया गया, तो रुद्रदमन ने उसको सही करवाया दोबारा से. Another inscription from the same rock mentions how one of the rulers of the dynasty got the lake repaired once again. देखिए सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी BC में तो इसको जो है कौन फॉर्मेशन करवा रहा है? लैक बनवाई किसने? मौर्य रूलर्स ने बनवाई है. सुदर्शन लैक बनाई किसने? मौर्य रूलर्स का जो एक गवर्नर था उसने. हमने बात की थी अर्ली टॉपिक में इससे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में. द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिवाइडेड इन 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स. 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स में एम्पायर को जो डिवाइड किया. पाटलिपुत्र कैपिटल, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशी एंड सुवर्णगिरी. तो जो उज्जैनी है वहाँ का जो गवर्नर था, उस गवर्नर ने जो है इसका फॉर्मेशन करवाया हुआ एक लोकल गवर्नर ने मौर्य पीरियड में. उसके बाद में रुद्रदमन ने जो इसको रिपेयर करवाया, लेकिन किसी कारण से फिर से इसमें कुछ तोड़ फोड़ जो हुई तो उसको किसने नहीं करवाया? तो डायनेस्टी के रूलर ने अराउंड द सेकेंड सेंचुरी. तो देखिए टॉपिक को शुरू करते हैं. इसका ये हमारा सोर्स था. क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से that who was in where does we can get the information about Sudarshan Lake. सुदर्शन लेक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? इसके बारे में इंफॉर्मेशन है एक रॉक इंस्क्रिप्शन जो सेकेंड सेंचुरी का लिखा हुआ है लैंग्वेज संस्कृत में. So let's start a changing countryside and the first topic is the popular perception of the king. यानी जो जनता है, the subject आम लोग जो हैं, स्पेशली द पीपल हु लिव इन विलेजेस, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो किंग्स के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस पैराग्राफ में. लेट्स स्टार्ट. What did objects think about the rulers? Obviously, inscriptions do not provide all the answers. In fact, ordinary people rarely left account of their thoughts and experiences. देखिए आम जनता जो है वो क्या सोचती है अपने रूलर्स के बारे में, इसके बारे में कोई इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें आंसर प्रोवाइड नहीं करती. और ना ही जो ऑर्डिनरी लोग उन्होंने ऐसी किताबें या कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन लिख के छोड़ा है जिसकी मदद से हम इसको जो है डिक्लेयर सकें. बट हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. लेकिन हिस्टोरियंस ने ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश की. किसकी तरफ से? बाय एग्जामिनिंग स्टोरीज कंटेनिंग एंथोलॉजी सच एज जातक एंड पंचतंत्र. जो जातक कथाएं या पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, देखिए जो कहानियाँ हैं जातक
इन कहानियों को जो है एग्जामिन करके हिस्टोरियन जो है उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि आम जनता जो है वो अपने राजा के बारे में क्या सोचती है, कि इन कहानियों में अधिकतर वो चीज़ें लिखी हुई उस वक्त होती थी। Many of these stories probably originate as origins that were later coming into writing. The Jatak were written in Pali around the middle of the first millennium. जो फर्स्ट मिलेनियम है उसके अंदर जातक जो है वो लिखी गई थी पाली लैंग्वेज में। उनके अंदर उस वक्त की जो टेल्स हैं, कहानियाँ जो है वो लिखी हुई रहती है। इसी तरीके से देखिए एक कहानी जो है गणबिंदु गांधरबिंदु, ये जो स्टोरी है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये कहानी है यहाँ से यहाँ तक। What does this story is all about? देखिए इस स्टोरी में बात होती है गणबिंदु जातक। इसके अंदर ये कि एक जो किंग है उसके बारे में कहानी में देखिए क्या क्या चीज़ें कौन लोग शामिल है। विक्ड किंग और उससे कुछ आम जनता जो है शामिल है, जिसमें गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, किसान, सभी लोग। अब होता क्या है कि भाई कहानी क्या कहते हैं, भाई जो किंग है वो अपना रूप कपड़े बदल के मतलब जो है अपने आप को डिस्गाइज करके सीक्रेटली गाँव के अंदर जाता है, लोगों से जो है बातें करता है। क्यों? इसलिए वो जानना चाहता है कि जो जनता है वो उसके बारे में, यानी किंग के बारे में क्या सोचती है, जनता जो आम लोग हैं वो किंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये पता करने के लिए वो डिस्गाइज के अंदर जो है ज़्यादा है अपनी सिटीज़ के अंदर। जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि जो जनता है वो उसको बहुत ज़्यादा कर्ज होगी। ईच वन ऑफ देम कर्ज इन्वॉल्व है मिजरी। हर कोई जो है अपने दुख दर्दों के लिए किसको पूछ रहा होता है, राजा को पूछ रहा होता है। वो उसको कंप्लेन करते हैं कि भाई नाइट में तो जो रॉबर्स है, चोर लुटेरे हैं, वो रात में चोर लुटेरे आके लूटते हैं और दिन में जो किंग है उसकी तरफ से जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो आके लूटते हैं। और इस सिचुएशन से बचने के लिए कि भाई दोनों तरफ से जो है पैसे की बर्बादी ना हो, उससे बचने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो गाँव छोड़ के जंगलों में जाना रहना भी शुरू कर दें। देखिए स्टोरी क्या है, हमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि भाई आम जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। तो इसके लिए हमने जातक स्टोरी से परिवर्तन कहानी के बारे में बात की। ऐसी ही एक जातक टैल है, जातक कथा है, उसके अंदर क्या होता है, एक किंग और उसकी जनता जो है उसके बारे में कुछ कहानी है। उस कहानी में लिखा हुआ है कि किंग जो है वो डिस्गाइज में जा रहा है सिटी, वहाँ पे लोगों से बातचीत करता है। लोगों से जब वो बातचीत करता है तो उसको पता चलता है कि लोग जो है अपने दुख दर्द के लिए किसके बारे में मानते हैं, किंग को। कि दिन में जो है वो टैक्स कलेक्टर हमें लूटते और रात में जो है चोर लूटे और किंग इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करता, तो किंग जो है उसको अपने लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उसको जिम्मेदार मानते हैं। As this story indicates the relationship between a king and his subject, especially the rural population, could often be stated. जैसा कि देखिए स्टोरी सजेस्ट कर रही है कि जो राजा है और उसकी जो जनता है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये थोड़ी तनाव भरे हो सकते हैं। किंग्स जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि भाई उनका जो कॉफर्स, उनके जो खजाने हैं, उनकी जेबें जो है वो भरी रहे पैसे से। इसके लिए वो जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लगाते रहते हैं, टैक्सेस की डिमांड करते रहते हैं। वहीं पेजेंट जो है वो इस डिमांड को काफ़ी ऑप्रेसिव मानते हैं। वो मानते हैं कि इसी वजह से उन्हें जो है उनकी जो ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और होता क्या है, एस्केपिंग इनटू द फॉरेस्ट रिमेन एन ऑप्शन। भाई जंगल में भाग जाना एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि सिटीज़ में रहेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स देने के लिए उनके पास में पैसा है, उससे बचने के लिए जंगल में भाग जाना एक मात्र उनके लिए ऑप्शन बनता है। एज रिफ्लेक्टेड में जाता है स्टोरी। मीनवाइल अदर स्ट्रेटजीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेस आल्सो केम टू बी अडॉप्टेड। वहीं देखिए जो टैक्सेस है उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए जो ग्रोइंग प्रोडक्शन है वो भी एक के रूप में देखा गया है। किसान जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करके भी जो टैक्सेस जो लिए जा रहे हैं टैक्सेस की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, परसेप्शन अबाउट किंग्स। क्या बात है, जो जनता है, आम जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है, आम जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। इसके बारे में हमने एक स्टोरी पढ़ी लिखी हुई, जिसके अंदर जो है वो डिस्गाइज में जा रहा है फ्रेंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। यानी जो गाँव है उन गाँवों के अंदर जो लोग हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज जो है उसको फॉलो करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो की जाती है गाँव के अंदर लोगों के द्वारा। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। One such strategy was the shift to plough agriculture, which spread in fertile nearby river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century BC. 6th century BC है, उसके बाद के पीरियड में हम देखते हैं कि जो प्लो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ लोग शिफ्ट हो जाते हैं। गंगा और कावेरी के जो फर्टाइल प्लेन है वहाँ पे द आयरन टिप प्लोशेयर was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall. Moreover, in some part of the Ganga valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation, although they will big back work for the production. देखिए और इसके अलावा क्या इसमें भी आयरन टिप प्लोशेयर जो है वो यूज होना शुरू हो जाता है। पैडी जो है उसका प्रोडक्शन गंगा की और प्लेन में, पैडी मीन्स राइस जो है उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है गंगा और उसके प्लेन में। While the iron ore shale led to a growth in agricultural productivity,
इट्स यूज वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। देखिए जो आयरन क्लोशेयर है इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इसका यूज जो है वो अभी भी कुछ ही पार्ट्स में हो रहा था, कॉन्टिनेंट के ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड नहीं होगा। कल्टिवेटेड इन एरिया विच आर सेमी एरिड सच एज parts of Punjab and Rajasthan did not elaborate till the 20th century, and those living in hilly tract in the northeastern central part of the subcontinent practiced co-agriculture. This was much better suited to the terrain. देखिए जो एग्रीकल्चर लो शेयर एग्रीकल्चर जो है उसको गंगा वैली में रहने वाले लोगों ने 6th सेंचुरी BC के आसपास डेवलप किया था। उस टेक्नोलॉजी को पंजाब हरियाणा जो कि सेमी एरिड एरिया है, because people living in Punjab Haryana has mainly dependent on monsoon. मानसून के ऊपर इन्हें डिपेंडेंट रहना होता है, क्योंकि मानसून जो है उसी के ऊपर ही एग्रीकल्चर जो है डिपेंडेंट है। कोई पेरिनियन रिवर जो है वो फ्लो नहीं करती राजस्थान से। ऑल्दो पंजाब के अंदर जो है काफ़ी सारी कैनाल्स है तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन राजस्थान इट स्टिल डिपेंड ओनली ऑन मानसून। तो उसकी वजह से इन लोगों ने जो है 20th सेंचुरी में कई आइडियाज का डेवलप किया कि 20th सेंचुरी में तो होता है ऐसा क्या इनोवेशन होता है 20th सेंचुरी में। इन 20th सेंचुरी ब्रिटिशर्स बिल्ड कैनाल्स इन पंजाब फॉर इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने के लिए जो 5 रिवर्स फ्लो कर रही होती है पंजाब में, उसमें बहुत सारे कैनाल जो है वो पंजाब के अंदर कौन बिल्ड करते हैं, ब्रिटिशर। वाइल सेम इज जो राजस्थान है वहाँ पे देखिए उस वक्त राजपूताना था, कई सारे जो हैं रियासतों में बटा हुआ था, प्रोविंशियल स्टेट्स थे। इन्हीं में से एक स्टेट होता है बीकानेर। बीकानेर के जो किंग होते हैं उस वक्त के गंगा सिंह, वो जो है एक कैनाल गंगा नहर जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं, जिससे कि श्रीगंगानगर के अंदर वाटर लेके आते हैं। तो ये और उसके अलावा इंदिरा गांधी कैनाल, ये जो है ऐसे एविडेंट इफेक्ट जो होते हैं चीज़ें जिसकी वजह से इसको एडप्ट किया जाता है राजस्थान के अंदर। बट स्टिल अगर हम बात करें तो आज भी नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जो पार्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट के वहाँ पे हाउ एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस हो रही है, जो हिली एरियाज है वहाँ। Another strategy adapted to increase agriculture production was the use of irrigation through wells and tanks and less commonly canals. Communities as well as individuals organize the construction of irrigation work. The latter usually powerful men including kings often recorded such activities in nature. देखिए कुछ और इसके अलावा पहला तो देखिए एग्रीकल्चर जो है उसका मेथड चेंज करना। दूसरा क्या तरीका था स्ट्रेटजी जिसके थ्रू जो है आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। द अनदर स्ट्रेटजी इंक्लूड द यूज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन जो है उसका यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई जो कि वाटर जो है वो काफ़ी नेसेसरी रिसोर्स है टू कल्टीवेट समथिंग। तो उसके लिए जो है वेल्स और टैंक्स को जो है वो यूज़ करना, और काफ़ी कम कॉमनली कैनाल जो है ये भी बनाएंगे, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल भी दिया। कुछ पावरफुल मैन जैसे कि किंग्स जो हैं ये कुछ कैनाल जो है वो बनाते थे, और जिसको बनाते थे उसको रिकॉर्ड करवाते थे कि ये लोग फॉर्मेशन कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, दैट व्हाट इज द डिफरेंस देयर इज इन रूरल सोसाइटी। जो रूरल सोसाइटी है उसमें क्या डिफरेंसेस थे, is there any differences in the society? Because we have already seen or we have already discussed that the period after Harappan civilization is known as the Vedic period, and in Vedic period the society was divided in four varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Now we will going to discuss those social hierarchies of the society. So let's start. While these technologies often led to an increase in the production, the benefit were very uneven. देखिए ये जो टेक्नोलॉजी जो थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा था, वो टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन ये बहुत अनइवन था. What is that? There was a growing differentiation among people engaged in agriculture. देखिए क्या एविडेंट इस पर से हम कह सकते हैं कि भाई लोगों के बीच में जो है एग्रीकल्चर में इंगेज लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस जो है वो पैदा हो रहा था. Stories especially within the Buddhist tradition refer to landless agricultural level. देखिए स्टोरीज जो कि स्पेशली कौन सी जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स की बात करती है, स्मॉल पीसेंट्स की बात करती है, एज वेल एज लार्ज एज लॉर्ड. यानी देखिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तीन जो देखिए कैटेगरीज हैं. People engaged in farming has been divided in three categories: landless laborers, small laborers and large landholders या बड़े जमींदार लोग. इन तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के जो लिटरेचर है उसको डिवाइड करते हैं जो सोसाइटी है उसको. द टर्म गृहपति वाज ऑफन यूज्ड इन पाली टाइप्स टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी. देखिए जो टर्म थी गृहपति ये कई बार यूज होती थी पाली लैंग्वेज के अंदर. जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है यानी जो मिडिल और लार्ज जो या फिर स्मॉल या लार्ज जो लैंड होल्डर है उनको डेजिग्नेट करने के लिए जो है यूज होती थी.
The large landholder as well as the village headman emerge as powerful figures and often exercise control over other cultivators. जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं ये गांव के मुखिया के रूप में इमर्ज होकर आए हैं, और दूसरे जो कल्टीवेटर्स उनको कई बार कंट्रोल भी रहता है। आपने देखा होगा कई सारी अर्ली मूवीज में एक भी पेड़ होता है उसके नीचे 5 जो है लोग बैठ के पंचायत चलाते हैं, उसका फैसला सुनाते हैं मुखिया। ये वही चीज़ यहाँ लार्ज लैंड ओनर जो है वो मुखिया के रूप में काम करते थे। अर्ली तमिल लिटरेचर ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस। वहीं देखिए जो तमिल लिटरेचर है उसने भी कई सारे जो है लोगों की कैटेगरी जो है वो मेंशन की, जो गाँव जो है उसके अंदर लोग रहते हैं उसमें। देखिए क्या है, लार्ज लैंड ओनर्स और वेल लार्ज फ्लोमेन और यूजर एंड स्लेव्स और आदि। देखिए 3 कैटेगरी जो थी ऊपर हमने बात की, 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी? लैंडलेस लेबरर, स्मॉल लेबरर्स, सॉरी लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंड होल्डर्स, बिग लैंड होल्डर्स। तमिल टेक्स्ट जो है उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। वहाँ पे जो लार्ज लैंड होल्डर्स है उनको कहा गया वेल्लार, फ्लोमेन और उजवाहर यानी जो छोटे किसान हैं उनको उजवाहर कहा गया, और जो स्लेव्स हैं उनको कहा गया आदिमल। It is likely that these differences were based on differential access to land। ये डिफरेंस किसके बेस पे था? ये बेस था कि उनके पास में ज़मीन कितनी है, लेबर कितना है, सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। इन सच ए सिचुएशन क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल ऑफ लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल एज दीज वर ऑफन डिस्कस्ड इन लीगल टर्म्स। जो क्वेश्चन है ज़मीन से जुड़ा हुआ ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है कि भाई ज़मीन जो है उसका मालिक कौन है, क्योंकि इसका कई बार जो है नेम मेंशन होता है बहुत सारे लीगल टेक्स्ट में। तो आगे बात करते हैं इसकी। देखिए इससे पहले पॉइंट आता है हमारे पास में होते कौन है या क्या चीज होती है? गृहपति। इसको हम गृहपति या गृहपति कहते हैं। गृहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउसहोल्ड। तो गृहपति को क्या होता है? ओनर होता है, मास्टर होता है, हेड होता है एक हाउसहोल्ड का, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव एंड वर्कर्स हू शेयर अ कॉमन रेजिडेंस। जो कि उसके ऊपर कंट्रोल करता है कि इनके ऊपर जो उसका अधिकार होता है, उसका अधिकार महिलाएं, बच्चे, स्लेव, वर्कर्स सभी पे होता है जो कि उसके घर में रहते हैं, उसके यहाँ में काम करते हैं। He was also the owner of the resources like land, animal and other things that belong to the house। और मकान से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें उन सभी का भी वो मालिक होता है। Sometimes the term was used as a marker of status for a man belonging to the urban elite, wealthy merchants उनके लिए व्यापार क्या यूज होती है। आगे हम बात करें लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल एलिट्स, यानी जो लैंड ग्रांट ज़मीन जो है वो कैसे दान दी जाती है, और कुछ नए जो हैं रूरल एलिट्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड प्लान्स ऑफ लैंड बीइंग मीट, मैनी ऑफ दिस वर रिकॉर्डेड इन डिस्क्रिप्शन। जो फर्स्ट सेंचुरी है कॉमन एरा की, वहाँ से हम देखेंगे कि जो जमीन है वो दान देना शुरू कर देगा, क्योंकि जो जमीन दान दी जा रही है उसके इंस्क्रिप्शंस में भी जो है रिकॉर्ड किया जा रहा था। सम ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस वर ऑन स्टोन बट मोस्ट वर ऑन कॉपर। अधिकतर जो ये ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जो जमीन दान करने से रिलेटेड थी वो स्टोन के ऊपर लिखी गई थी, लेकिन बहुत सारी जो है वो हमारे पास में कॉपर प्लेट्स में लिखी हुई मिली है। which were probably given as a record of the transitions to those who received the land। ये जो कॉपर प्लेट्स की रिकॉर्ड के रूप में दी जाती है उस पर्सन को जिसके नाम को जो है जमीन जो है वो दान दी गई। द रिकॉर्ड दैट हैज सर्वाइव्ड अबंडंटली अबाउट ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस, जो रिकॉर्ड्स हमारे सर्वाइव होते हैं जमीन दान से रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि जो जमीन है वो या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी किसी मंदिर को जमीन दान की या ब्राह्मण को जमीन जो है वो दान दी गई है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत, अधिकतर जो इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें संस्कृत लैंग्वेज में। In some cases, especially from the 7th century onwards, parts of the inscription was in Sanskrit, while the rest was in the local language such as Tamil or Telugu। वहीं देखिए 7th century की बात करें तो डेट उसके अंदर इंस्क्रिप्शन का कुछ पार्ट है वो संस्कृत का, बाकी अधिकतर जो पार्ट है वो लोकल लैंग्वेज में लिखा जाना शुरू हो गया। ऐसे ही एक इंस्क्रिप्शन की जो है यहाँ पे बात करेंगे प्रभावती गुप्त was the daughter of one of the most important ruler in early Indian history, Chandragupta II। देखिए प्रभावती गुप्त जो है ये गुप्त डायनेस्टी जो है गुप्त डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो है उसकी डॉटर होती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का रूलिंग पीरियड होता है 375 से 453 शी वाज मैरिड टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली। इसकी शादी जो है वो दूसरा एक जो रूलिंग परिवार की इतने रूलिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते गुप्त डायनेस्टी से, उनका मगध जो है वहां की मगध डायनेस्टी है उसमें दूसरा जो है इस तरीके में रूलिंग फैमिली उससे इसकी शादी होती है। वो कौन थे? कपट। Who were powerful in the Deccan region? The Deccan region was the powerful in Kakata Sanjay Sharma की शादी थी। According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. However, the inscription indicated Prabhavati had access to land, which she
लैंड ग्रांट। देखिए जो इंस्टीट्यूशन है वो ये इंडिकेट करती थी कि जो रिसोर्सेज है वो उनके ऊपर वुमेन्स का कोई राइट नहीं था, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन हमें मिली है साउथ से उसमें ये प्रभावती है उसका जमीन पर राइट भी था, हाउस सी है ग्रांटेड उसको वो जमीन है वो दान भी। दिस में हैव बीन बिकॉज़ शी वाज अ क्वीन कास्ट टू नॉट फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री एंड द सिचुएशन वाज देयर एक्सेप्शनल। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजंस ऑफ लीगल टैक्स वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। भाई ऐसा ही क्या कारण हो सकता है कि जो बाकी जो वुमेन्स है उनका कोई लीगल राइट नहीं है प्रॉपर्टीज पे, उनको जमीन देने का कोई दान देने का कोई अधिकार नहीं, प्रभावी मतलब अधिकार है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? रीजन ये है कि वो एक क्वीन जो है वो थी इसलिए उसको जो है ये राइट मिला होगा। देखिए सोर्स जो है यहाँ पे हम बात करें, सोर्स है हमारे पास में लाइफ ऑफ सीनर स्मॉल विलेज, छोटे से गांव के अंदर क्या जिंदगी है। द हर्षदीप इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द मदर ऑफ द कंपोज समथिंग लाइक ए शॉर्ट पोएम फार्म। देखिए यहाँ तक की जो लाइन है यहाँ से ही हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है हर्षचरित इज द बायोग्राफी ऑफ विच, हर्षचरित जो है वो किस रूलर की बायोग्राफी है? तो हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की बायोग्राफी। सेकंड, हु हैज कंपोज द हर्षचरित, हर्षचरित जो है वो किसने कंपोज की है? बाणभट्ट ने। इन विच लैंग्वेज हर्षचरित वाज कंपोज? संस्कृत लैंग्वेज। तीन क्वेश्चन देखिए यहाँ से तैयार है हमारे। This is an extract from the text and extremely rare representation of life in a settlement on the outskirts of the Vindhya। देखिए ये जो है एक छोटा सा टुकड़ा है पूरी हर्षचरित बायोग्राफी उसका, जिसके अंदर विद्या जो है विद्या नॉर्थ ईस्ट है उसके पास के जो है छोटे से गाँव के बारे में बताया गया है। अब एक छोटा सा गाँव है उसकी क्या लाइफ। The outskirts being for the most part forest, many parcels of rice land, threshing ground, arable land were being apportioned by small farmers. It was mainly spread culture owing to the difficulty of playing this sparsely scattered field covered with grass with their few clear spaces. Their black soil stiff as black iron. There were people moving along with bundles of bark, quantities of sacks of flour, load of flax and hemp bundles, quantities of honey, peacock, teals, feather, breadth of bags, loads। ये देखिए पूरा एक छोटा सा गांव है, उसकी कहानी बताएगी कि छोटे से गांव के लोग जो है कौन कौन से वेरियस एक्टिविटीज में इंगेज हो जा रहा है। नहीं जा रहा क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे ऊपर जो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे हम बात करते हैं कि जैसा हम बात कर रहे थे कि जो वुमेन है उनको राइट नहीं था, लेकिन हमने एक डिस्क्रिप्शन मिली जिसके थ्रू हमने देखा है कि प्रभावती द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड द वाइफ ऑफ वाकाटक जो रूलर थे उनकी वाइफ थी, उसने वो जमीन जो है वो दान दी। लैंड ग्रांट सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। देयर वर रीजनल वेरिएशन इन द साइज ऑफ लैंड यूनिट। इस तरीके की जो जमीन दान जो है ऐसे पूरे कंट्री में और भी बहुत सारी जगह यूनिक, लेकिन जो जमीन दान की जाएगी उसकी साइज जो है वो अलग अलग हो सकती है, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट टू वास्ट एक्सटेंसेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड एंड द राइट्स गिवन टू दान इज द रिसेप्शन ऑफ द ग्रांट। यानी जमीन जो है वो छोटे से प्लॉट से लेकर बहुत बड़े जमीन की सतह हो सकती है। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज द सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग historians. Some feel that the land grant was part of a strategy adopted by rulers, the idea is to extend agriculture to new areas. Others suggest that land grant was indicative of gaining political power as kings were losing control over the farming। देखिए ये जो जमीन जो दान दी जा रही है इसको लेकर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दो आइडियाज हैं वो बताया। पहला आइडिया तो ये है कि जो किंग है वो अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, तो इसलिए जमीन दान दे देते। जमीन दान देंगे जिस भी पर्सन को वहाँ जाकर एग्रीकल्चर करेगा और एग्रीकल्चर करेगा तो उससे प्रोडक्शन होगा और जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर टैक्स होगा और टैक्स किसके पास में आएगा? किंग के पास। तो अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन डाल देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया बढ़े और ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ। वहीं दूसरा जो थ्योरी हुई दिया गया कि जो किंग है उसकी पावर जो है वो कमज़ोर जब होने लगी, जो सामंत है उन सामंत जो है वो पावर गेन करने लगे। सामंत हम बात कर चुके ऑलरेडी, सबऑर्डिनेट करते थे। जब वो पावरफुल होने लगे तो किंग जो है उनके अपने एलाइज जो है उनको जीतने के लिए या फिर उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए जो जमीन है वो उनको दान देना था जिससे कि वो जो है साथ में रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये है सोर्स हमारे पास में एक प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ डैंगोना। जो विलेज नाम का था प्रभावती गुप्ता जो है उसकी कहानी विशेष और प्रभावती गुप्ता स्टेट डिस्क्रिप्शन। प्रभावती गुप्ता कमांड द ग्राम कुटुंबन हाउस होल्डर्स living in the village, Brahmana and other living in the village of Brahmana paid not to that on the 12th lunar day of the bride of Kartik we have in order to increase our religious merit denoted the village with the pouring of the water to the Acharya Charan vessel. You should obey all his commands। देखिए क्या चीज़ है ये, क्या कह रहा है इसके अंदर। उसमें आगे बात कर सोर्स से किसके बारे में? प्रभावती गुप्ता के बारे में। और जो विलेज है
उसके बारे में। ये यहाँ पे क्या कह रही है कि अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर प्रभावती गुप्ता ने क्या चीज़ लिखी। प्रभावती गुप्ता जो है वो जितने भी गाँव के अंदर रहने वाले लोग, ग्राम कुटुंब में इसका मतलब गाँव में रहने वाले सारे लोग, उनको वो ये कमांड करती है, ऑर्डर देती है कि भैया आप हम जो हैं ये जो 12th डे है जो कि लूनार डे है, लूनार कैलेंडर के ऊपर जो बेस 12th डे है, उस दिन जो है हमें कार्तिक जो है महीना, कार्तिक का महीना और उसके 12वें दिन को जो है हमने ये तय किया है कि रिलीजियस मैरिज जो है वो हम डिनोट करेंगे किसको, जो आचार्य टीचर है चरण स्वामी, उनको आपको जो है उनके सारे आदेश जो है कमांड जो है वो मानने पड़ेंगे। और प्री कंफर्म ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्शन टिपिकल ऑफ एन एग्रीहर नॉट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए जो आचार्य हैं चैनल स्वामी, इनके बारे में जो है वो कहती है भाई इनके ऑर्डर्स हैं वो आपको गांव के सभी लोगों को मानना है। दिस चार्टर हैज बीन रिटन इन द 13th रीजनल ईयर इंग्रेड बाय चक्रदत्त। पूरी जो कहानी है वो इसके अंदर लिखी हुई है कि भाई उनको जो है क्या क्या चीज़ें आप देंगे क्या नहीं देंगे, ऑल दैट जो है छूट है सारी चीज़ें। जो लैंड ग्रांट्स हैं तो ये वो हमारे पास रिलेशनशिप है वो शो करती है कल्टिवेटर और स्टेट के बीच में। भाई जो राज्य और जनता है उसके बीच में कैसा संबंध है, हमने लैंड ग्रांट में जमीन दान जाती है उसको करता। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इनकी फॉर्म से बाहर थे और ऐसे लोग कौन थे, पास्टलिस्ट थे, फिशर फॉर्म थे, अंडरग्रेड थे, ये है म्यूजिक को मूव करने वाले लोग मछुआरे हैं इसमें शामिल नहीं थे। आगे हम बात करें, आगे टॉपिक आता है हमारा टाउन्स एंड ट्रेड्स विच विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए नाइस डे।